Hello students, in this video we are going to practice some examples based on beta function and gamma function. But before that, there are some results which need to be discussed before moving to the example. The first result is to figure out the value of gamma 1 by 2 which is widely used in the numericals. Value of gamma 1 by 2. अभी हमें इसकी value नहीं पता. So let's start. We know that beta mn is equals to beta mn की वैल्यू क्या होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, यही वैल्यू होती है. ये रिजल्ट आपको पता है. सेकेंड रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए दैट वाज द 0 to पाई बाय 2 डबल ऑफ साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा. ये सेकेंड रिजल्ट हो गया हमारा. अभी हम रिपीट कर रहे हैं रिजल्ट्स को जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. अभी यहाँ पे इस सेकेंड रिजल्ट में इन द सेकेंड रिजल्ट पुट द वैल्यू ऑफ बीटा एम एन फ्रॉम पार्ट 1. यहाँ से वैल्यू पुट कर दो. पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. क्या बन जाएगा गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. दिस इज डबल ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन 2m-1 थीटा cos 2n-1 theta d theta. Now put both m and n equals to 1 by 2. दोनों की वैल्यू 1 by 2 पुट करो यहाँ पे. गामा 1 by 2 गामा 1 by 2 डिवाइडेड बाय गामा 1 by 2 प्लस 1 by 2 डबल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2. साइन की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे. पुट m हाफ. सो दिस वॉज 2m-1. m को 1 by 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल 0 साइन 0 थीटा. सिमिलरली कॉस 0 थीटा डी थीटा एंड समथिंग रेज टू पावर 0 इज सिंपली 1. सो दिस इज सिंपली डी थीटा क्योंकि साइन 0 भी 1 हो गया. कॉस 0 इज ऑल्सो 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज सिंपली थीटा 0 to पाई बाय 2 अपर लिमिट minus lower limit. So your answer is pi here. And in the left side this is gamma 1 by 2 square because gamma 1 by 2 into 1 by 2 and gamma half plus half, that is gamma 1, and gamma 1 is simply 1 taking square root. So your answer is root pi. Very important result that gamma of 1 by 2 is root pi, which you are going to use in the upcoming examples. There is one more result which is given as that integration 0 to pi by 2 sine raised to power p theta cos raised to power q theta d theta. This is equals to half of gamma p plus 1 by 2 gamma q plus 1 by 2 divided by gamma p plus q by 2 plus 1. दिस रिजल्ट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हमने पहले बीटा फंक्शन में करी थी ना, वहीं से डिड्यूस हुआ है. यू कैन ऑल्सो यूज दैट प्रॉपर्टी इन द न्यूमेरिकल्स और यू कैन गो फॉर दिस वन. दैट्स द चॉइस इज योर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल 1, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x square upon 1 minus x raised to power 4 in the square root dx. We have to solve this integration. Evaluate this part. Let's start with the solution. Let I is equals to 0 to 1 x square 1 minus x raised to power 4 dx. Let's define this as I. Now first what we are going to do, we are going to do the substitution and we are going to convert this integral into the trigonometric form. इस form में बनाएंगे हम इसे. See how the things are going to work. Put x square is equals to sine theta. Let's cover 2-3 examples, then I will give you a generalized way that how you can remember the substitution part. मतलब आपको एक जनरलाइज्ड बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह से सब्सटीट्यूशन जो है वो होनी होती है जिससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में इजी रहेगा. So first let's in this part put x square is equals to
साइन थीटा, एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा रेज टू पावर 1/2। सो इवेंचुअली डी एक्स इज पावर आगे हाफ साइन थीटा की पावर में 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा along with that d theta. And like I repeat again, I told you last time also, don't forget to change the limits. The limits of x are from 0 to 1. यहाँ पे x को 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, which means sin theta is equals to 0. Sin theta is 0, it means theta is equals to sin inverse 0, which is again 0. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. Now put x is equals to 1. 1 square 1. So sin theta is equals to 1. So theta is equals to sin inverse 1. Sin inverse 1 कितना होता है, 90 pi/2. So your integral I reduces to integration 0 to pi/2. What was the value of x square, क्या पुट करा आपने, sin theta divided by square root 1 minus, now this is x raised to power 4. x4 means square का square. What is the value of x square, sin theta, then its square. So this will become sin square theta. And dx की value, what is the value of dx, 1/2 sin theta raised to power minus 1/2 and cos theta d theta. Now let's simplify. 1/2 constant outside the integration, 0 to pi/2 sin theta. Now it is 1 minus sin square theta, cos square theta, outside square root भी पड़ा हुआ है, so this will be simply cos theta sin theta raised to power minus 1/2 cos theta d theta. Cos theta is getting cancelled, sin theta पावर 1 sin theta पावर हाफ, नेगेटिव में कितना रह जाएगा ये, 0 to pi/2 sin theta की पावर कितनी आ जाएगी, 1 minus 1/2 is 1/2 d theta. Or you can also write it like this, 0 to pi/2 sin theta raised to power 1/2 cos theta raised to power 0. क्योंकि cos तो cancel हो गया ना, cos is getting cancelled here, so I can say the cos is having power 0 like this. Now look at this result. What this result says, that if the powers are p and q, how you are going to write the formula, half then गामा ऑफ p प्लस 1/2, मतलब जितनी पावर है उसमें 1 प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ, गामा q प्लस 1/2. और यहाँ पे ये क्या हो रखा है, जस्ट यहाँ पे जो नंबर्स है ना, जो भी आंसर आपको आने वाला है उनको ऐड कर देना बस, सिंपली p प्लस q/2 प्लस 1 ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो. नहीं तो यहाँ पे तो आप सिंप्लीफाई करने ही वाले ना, बस उनको ऐड करके लिख देना. अब यहाँ पे देखो क्या आ रही है, p की वैल्यू कितनी है हाफ और q की वैल्यू कितनी है 0. इसके साथ कंपेयर करेंगे फॉर्मूला के साथ, p is half, q is 0, 1/2. This 1/2 was already present there. तो 1/2 पहले से है ना, एक अब इस फॉर्मूला में आएगा, ये फॉर्मूला वाला हो गया 1/2 गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ p प्लस q/2 प्लस 1. मुझे स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से करना जब आप ये वाला करते हो. यहाँ पे गलती क्या होती है, हम इस 2 को पूरे के नीचे लिख देते हैं, इवेंचुअली हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. फिर 1/2 इंटू 1/2 1/4, यहाँ पे एलसीएम लो, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, एक ये 2 साथ में नीचे और पड़ा है, सो 3/4. और यहाँ पे गामा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, गामा ऑफ 3/4. Gamma 3/4 is getting cancelled, so this is 1/4 gamma 1/2. If you recall, what was the value of gamma 1/2, root pi, so your answer is root pi/4. Done. Let's move to the example 2.
This example is quite similar. Evaluate integration 0 to infinity x square upon 1 plus x raised to power 4 dx. अब आपको इसको evaluate करना है. So let's start with the solution. Let us suppose this is equals to I. Here I am going to put x square is equals to tan theta. Let's do the substitution. Put x square is equals to tan theta. So x is equals to tan theta raised to power 1 by 2. Do the derivative dx. dx कितना हो जाएगा यहाँ पे, पावर आगे 1 by 2. tan थीटा की पावर कितनी रह जाएगी, -1 by 2. एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस tan थीटा इज secant square थीटा d theta. Change the limits. x is having limit 0 to 1. Put in the substitution part. x को 0 पुट करेंगे, tan 0 कहाँ पे होता है, 0 पे. 1 पुट करेंगे तो tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 45 पे, pi by 4. It's at pi by 4. So your integral I becomes 0 to pi by 4. X square means tan theta. Now again x4 can be written like x square का फिर से स्क्वायर. So 1 plus tan square theta. यहाँ पे dx की वैल्यू 1 by 2 tan theta raised to power -1 by 2. Along with that secant square theta d theta. 1 by 2 is a constant. Move it outside. 0 to pi by 4. Just a second. Here the limit are 0 to, it's from 0 to infinity ना, यहाँ पे infinity था, ये गड़बड़ हो गई. x was 0 to infinity और tan infinity 90 पे होता है, यहाँ पे pi by 2 आएगा. The limit is pi by 2. Now what is 1 plus tan square theta? 1 plus tan square theta secant square theta, and it will get cancel. This 1 by 2 is taken outside. यहाँ पे tan की पावर कितनी है, पावर इज 1, और यहाँ पे कितनी है, -1 by 2. तो कितनी पावर रह जाएगी tan थीटा की, 1 और 1 -1 by 2, 1 by 2 रह जाएगी. tan को क्या लिख सकते हैं हम, what is the expression of tan? tan is sin theta upon cos theta raised to power 1 by 2 d theta. cos को ऊपर ले जाओ. So this is sin half and cos negative of half d theta. अब रिजल्ट क्या था, यहाँ पे p की वैल्यू है -1 by 2 और q की वैल्यू है 1 by 2. रिजल्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हाफ, देन गामा ऑफ दिस इज p एंड दिस इज q, द पावर्स p plus 1 होल अपॉन 2, गामा q plus 1 पूरे के नीचे क्या है 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ p plus q 1 by 2 -1 by 2 अपॉन में 2 plus 1. देखो यहाँ पे पूरे के नीचे 2 होता है, यहाँ पे +1 करते हैं हम, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे +2 करके पूरे के नीचे 2 कर दो. दैट्स योर कॉल. 1 by 2 इंटू 1 by 2 इज़ 1 by 4. गामा ऑफ 1 by 2 plus 1 3 by 2 अपॉन में 2 3 by 4 -1 by 2 plus 1 that is gamma 1 by 4, and denominator 1 by 2 minus 1 by 2 0, 0 plus 1 is 1. So you got 1 by 4, gamma 3 by 4, gamma 1 by 4, and what is the value of gamma 1? If you recall, gamma 1 is equals to 1. So your answer is 1 by 4, gamma 3 by 4, gamma 1 by 4. एक तो बच्चे आपका यहाँ तक आंसर आ चुका है फर्स्ट स्टेज में. एक हमारे पास रिजल्ट होता है गामा फंक्शन का, दैट गामा m इंटू गामा 1 माइनस m इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन m पाई. इस रिजल्ट को यूज़ करके हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस आंसर को, दैट अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू पड़ी हो गामा m गामा 1 माइनस m, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो. अब देखो मैं इस वैल्यू को कैसे चेंज करती हूँ. दिस इज़ 1 by 4. आई एम गोइंग टू राइट गामा 1 by 4 एज इट इज़. 3 by 4 को मैंने लिख दिया 1 minus 1 by 4, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ 3 by 4 ना. 3 by 4 को क्या लिख दिया मैंने, 1 minus 1 by 4. अब ये वाली फॉर्म बन गई है गामा m गामा 1 minus m. सो क्या रिजल्ट है, पाई
अपॉन साइन एम पाई। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई/4। यहाँ पे 1/4 है आउटसाइड, 1/4 पाई साइन पाई/4 साइन 45 1/√2। सो दिस इज कितना आंसर आ गया मेरे पास 1/√2, रूट ऊपर चला जाएगा, √2 पाई अपॉन 4, और कैसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 2√2। सो योर आंसर इज पाई अपॉन 2√2। ये पता लगा ना कैसे लिखा है 4 की हेल्प से। 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 × 2। इस 2 को किस तरह से लिख सकते हो √2 × √2, और ये एक √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई आई गॉट पाई 2√2। ठीक है। अभी रही बात सब्स्टिट्यूशन की। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप खुद से ट्राई करना, दैट द प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन 0 to infinity x अपॉन 1 + x⁻⁶ dx। ये आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी लेट मी नो, वी कैन कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें आपको हिंट दे देती हूँ सब्स्टिट्यूशन का। आपने करना क्या था, देखो जनरली क्या होगा आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशंस आएंगे, 1 + x⁻n हो सकता है, या फिर 1 - x⁻n में। और अगर आप ध्यान से देखो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को। अब और एक आप ये भी ध्यान में रखोगे कि tan से भी हम इन दोनों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। वेल नोन आइडेंटिटीज़ है दैट 1 - sin² थीटा इज़ cos² थीटा एंड 1 + tan² थीटा इज़ sec² थीटा। तो अगर आप यहाँ इन दो आइडेंटिटीज़ को ध्यान दो, किस तरह से है कि अगर तो नेगेटिव है तो 1 - sin² है, और tan के केस में क्या है प्लस साइन है। अब जब तो आपके पास प्लस में वैल्यू आ रही है 1 + x⁻n, तो आप क्या करो उस x को पावर को स्प्लिट करो और उसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाओ। जैसे यहाँ पे 6 है, x⁻6 को आप कैसे लिखोगे x³ का स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि जो भी पावर दे रखी है उसको स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर लो, क्योंकि आपके आइडेंटिटी में स्क्वायर आ रहा है। अब ये देखो कि प्लस का साइन है कि माइनस का। अगर तो प्लस का साइन है तो इस x³ को क्या पुट कर दो tan थीटा, और अगर माइनस का साइन है तो उसी को क्या पुट कर दो साइन थीटा। दिस इज हाउ यू कैन डू दी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x⁻8 है, इसको पहले कैसे लिख सकते हो x⁻4 का स्क्वायर, और अब x⁻4 को पुट करना है, क्या पुट करोगे नेगेटिव साइन है, सो यू आर गोइंग टू पुट इट एज साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हो। So that's it. These were some basic examples based on beta and gamma function. Let me know if you have any doubt. We will cover them in next video. Till then, practice the questions. Thank you.